بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، بوڑھے کتے ایویں نہیں بھونکدے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بوڑھے کتے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں گاؤں میں، جہاں دیہات میں، جب وہ بھونکتے ہیں تو خاص بات ہوتی ہے، ایسے بلا وجہ نہیں وہ بھونکتے۔ تو خیر کہاوت میں عجیب سی بیان کر دی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خواجہ آصف ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے فوج کے ساتھ، باجوہ کے ساتھ میں، ہمیں فیض حمید کے ساتھ مل کر یہ کیا۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ویسے تو لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن دماغ چل گیا ہے، یہ ساری کہانی بیان کر رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اس وقت اس کے سسر کے، باجوہ کے سسر میں پتہ نہیں کیا کھے کھا رہا تھا ادھر، تو ادھر فیض حمید بھی تھا، نہیں کیا کر رہے تھے۔ یہ جو کہانی ساری سن رہے ہیں، یہ بالکل یہ ایسے سچی بات ہے اس میں کہ یہ جو باجوہ کا سسر ہے، یہ بھی آرمی آفیسر تھا، سابق ریٹائرڈ ہے، اور یہ سازشوں کا گڑھ تھا اور ہے۔ یہ بڑی عجیب، باجوہ کے دور میں سارا اثر و رسوخ چلتا ہی اس کا تھا، یہی ساری سازشوں کا تانا بانا بنتا تھا۔ علیم خان کے ساتھ اس کے تعلقات، پراپرٹی کے معاملے میں جو تعلقات جو سنتے ہیں ہم، تو یہ ادھر سے سنتے ہی ہیں نا، تو یہ سارا کچھ یہ کرتا تھا۔ یہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ فیض حمید بھی ادھر تھا اور یہ خواجہ بھی ادھر ہی تھا۔ تو جی ہمیں فیض حمید نے یہ بتا دیا کہ ہم تو بہت تنگ آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عمران خان کی شخصیت کہ وہ اس کو وہ جو ڈکٹیشن پہ چلتا ہے جی، وہ جی جیسے آرمی کہہ رہی تھی ویسے چلتا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بات ہی نہیں مانتا تھا۔ کب کی بات ہے؟ اگست 2018 میں اس کی حکومت آتی ہے عمران خان کی، یہ مارچ اپریل کی بات ہے 2019 کی، ایک سال بھی پورا نہیں ہوتا، یہ اس سے تنگ پڑ گئے ہیں۔ یہ دراصل اسے لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کی ہوا ایسی چل پڑی تھی، ان کی مجبوری بن کی تھی کہ چلیں اس کو لاتے ہیں، اس کے غبارے سے ہوا نکالتے ہیں اور پھر اس کو مجبور کر لیں گے۔ جو بساکھیاں دی تھیں اس کو، انہوں نے جو الیکٹریبلز اس کو دیے تھے، بالکل ملاقاتیں کروائیں، یہ ایم کیو ایم کو لے کر آئے اور یہ باپ کو لے کر آئے اور خسرو بختیار اور بہت سارے پرویز جو ادھر ہے، ایم این اے اور اس طرح کے گروپ جو بھی ہیں، یہ سارے آئی ایس آئی لے کر آئی، اس کو دیے اور بدنام بھی ہو گیا وہ کہ مجھے انہوں نے دیا۔ پھر اس کا جب الیکشن بھی چوری کیا، وہ کہتا تھا میں تحقیق کروانا چاہتا تھا کہ میرا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے میری سیٹیں مجھ سے لی گئی ہیں۔ باجوہ نے کہا تمہیں حکومت مل گئی ہے، بات ٹھیک ہے۔ یہ ان کے اعتماد میں تھا، اعتماد یہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے منع کیا کہ مسلمان کو دھوکہ دینا حرام ہے، تو یہ دھوکہ دے رہا تھا اس کو بساکھیوں پہ، پھر اس کو نکالنے کی بات کا بھی شروع کر دی۔ آپ اندازہ دیکھ لیں، آپ 19 مارچ 2019 میں ہی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا خواجہ سے، ذہن ان کا پہلے کا بنا ہوا تھا۔ ظاہر اندرون خانہ انہوں نے ایک دو بندوں، دو ڈھائی جرنیل، انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لی تھی کہ اس کو نہیں رہنے دینا، یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، ہمارے کہنے پہ نہیں چلے گا۔ یہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے، امریکہ کو بھی انہوں نے ساتھ بنا لی کہ یہ بندہ تمہارے کام کا نہیں ہے، یہ تو روس کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے، تو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، تو یہ کام نہیں کرے گا۔ صرف باتیں نہیں کرتا، یہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ کچھ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو وہ تو نوارہ کھا جاتے ہیں، لیکن یہ تو بندہ اڑ گیا ہے، یہ تو صحیح پٹھان ثابت ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں ان کا حال۔ اور پھر یہ وہ جو کیپٹن صفدر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے گھٹنے ان لوگوں نے، اندازہ لگائیں آپ ان کے کردار کا اندازہ لگائیں کہ جا کر اس کے گھٹنے پڑے نواز شریف کے پہ کہ جی آپ آ جائیں۔ ظاہر ان کے پاس کوئی اور چانس ہی نہیں، آپشن ہی نہیں تھی۔ عمران خان تھا یا وہ چور تھے، تو انہوں نے بڑی خوبی سے، بڑے اچھے سلیقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر لی، انہوں نے اس کے ساتھ کر لی اور اس کو باہر بھی بھیج دیا، پھر اس کو لے بھی آئے اور عمران خان کی چھٹی بھی کرا دی۔ یہ خواجہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس وقت کیا جب اس کو ایکسٹینشن مل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی، صرف 6 وقت کے بعد اس نے آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ آپ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش آپ دیکھیں کہ
अपॉइंटमेंट करनी या एक्सटेंशन देनी तो प्राइम मिनिस्टर का काम है। तो उस वक्त ये ख्वाजा ये प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान का था, तो फिर ये डील क्यों कर रहे थे सारी। फिर ये बात बड़ी सोचने वाली है कि इमरान का नवाज शरीफ का किरदार दरमियान में कहाँ आना था। वो इसी सूरत में ही आना था जब केस अदालत में जाना था, और चला गया केस अदालत में। केस अदालत में फिर रिट पिटिशन हुई अदालत में, उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज होगी, जो भी हुआ आगे वहाँ कानून बनना था। उसके लिए नवाज शरीफ के वोट की ज़रूरत थी, और नवाज शरीफ ने वो सारी डील की हुई थी, फिर और पुख्ता कर ली और सारा वोट इसको दिया। इमरान खान पहले इसके झांसे में आया हुआ था, तो उसने ये बात। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखें ये किस तरह ये लोग, इनकी सियासत क्या है, सारी की सारी साजिशों पर बनती है। साजिशों के ताने बाने से ये इक़्तिदार में आते हैं और करते हैं, और अपने बंदे ख़रीदते हैं, अपने बंदे लाते हैं, और अपने जर्नैल लाते हैं, अपने आर्मी चीफ लाते हैं। तो इस तरह ये हुकूमत करते चलाते हैं। तो मैं बस यही बात करना चाहता था आपसे कि आप इन लोगों की सियासत को देखें, इनके मफादात को देखें, इनके सामने क्या मफाद होता है। इक़्तिदार लेना है, बस इक़्तिदार लेना है और लूट मार करनी है, जितनी भी कर सकें की है। अब देखें ये अलमिया, मैं फिर वही बात IPP वाली बात करूँगा कि आप देखें इन पर तो मुकदमे कायम होने चाहिए। अब लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो माहदे हुए हैं, असल असूली तौर पर तो वो माहदे है ही नहीं। ये मैंने चंद दिन पहले हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का एक थोड़ा सा इंटरव्यू सुना, अच्छा लगा मुझे, उनकी सारी बातें बड़ी अच्छी जेन्युइन बातें लगी, और बड़ी उनके को उन्होंने कहा कि हम टेक्निकली तौर पर हम देख रहे हैं, टीमें बना दी हैं, कुछ ऐसे हैं जो माहदे हैं उसके मुताबिक है ही नहीं। जिस फ्यूल से उन्होंने कहा था हम बनाएंगे, वो उससे बना ही नहीं रहे, बिल्कुल ही नहीं बना रहे। यूनिटी में अरबों रुपए खरबों रुपए उनको कैपेसिटी चार्जेस में दिए जा रहे हैं, तो इन पर मुकदमे बनने चाहिए। ये तो कुछ काम हो सकता, मगर कौन बनाए। ये तो काम हो सकता है कि माहदे के मुताबिक ही नहीं है। जब आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो उस माहदे को कैंसिल किया जा सकता है, मगर कौन करे। ये तो खुद उसमें अनवाल में, और ताकत बंदूक इसके साथ है खड़ी हुई, तो इनको कौन हाथ लगाए। तो वहाँ ज़िबा होती है तो होती रहे, मरती है तो मरती जाए, बिल 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 करती है, बिलों से बिलखती रहे तो बिलखती रहे, कौन पूछने वाला। ये है जुल्म। इसके बारे में कहा गया है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हाँ जी, कुफर का निज़ाम चल जाता है, कुफर भी जुल्म ही होता है। बहरहाल चलो एक बात बनाई है कि जुल्म, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी। ये निज़ाम ऐसा नहीं चल सकता, इसने एक दिन गिरना, और इंशाअल्लाह ये गिरेगा। ये गिरेगा, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह ये गिरेगा। ये लोग ख़ुद भागेंगे, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब ये इनकी हालत हो गई है, और इंशाअल्लाह कुछ जजेस भी खड़े हो गए हैं, तो वो देखें क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। हम पर उम्मीद में, मैं बस यही बात कहना चाहता था कि ये जो बुढ़े बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, इनके पीछे क्या साजिश होती, क्या चाल होती है। ये अब पता नहीं, कुछ कहते हैं ये मलबा डाल रहा है, फैज़ हमीद पर मलबा डाल रहा है, फैज़ हमीद कोई नरम गोशा रखता है। फिर कहते हैं जी 2019 देख लें, जो लोग ये रिसर्च करना चाहते हैं, उस वक्त मार्च अप्रैल में DGISI कौन था। ये तो नहीं था, फैज़ हमीद तो नहीं था, कौन था वो। मेरा ख्याल है यही हमारे बड़े साहब थे उस वक्त, ये आसिम मुनीर साहब थे। ये सब कुछ ताना बाना बुना जा रहा था पहले ही। ये सारे इस तरह ही चलते हैं, इस तरह ही काम इनके होते हैं। तो ये पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं, कहते हैं कि ये था उस वक्त DGISI था, तो ये काम कर रहे थे जी। उसको चलने ही नहीं दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, आप मुवाजना करते हैं इनके दौरों अदवार का और उसके 3.5 साल अदवार का, उसको चलने ही नहीं दिया गया। उसका साल, 1.5 साल, 2 साल तो कोरोना ले गया। कोरोना ले गया उसको, या उसकी हुकूमत बच गई। ये तो उसको 2019 में फारग करने वाले थे, दिसंबर में। कोरोना की वजह से ये नहीं कर सके। कोरोना आया, उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। दुनिया की जो 3 बड़े अच्छे मुल्क थे जिन्होंने कोरोना को सबसे बेहतरीन टैकल किया था, वो उनमें से एक पाकिस्तान है, और इमरान खान की वजह से था कि उसने सब कि वो अवाम की सोचता है, अवाम की भलाई की सोचता है, करने की कोशिश करता है। अब देखें, एक तरफ तो ये बाजवा जिसका सारा कंट्रोल नैब पर, इसका कंट्रोल इमरान खान का तो सारा यही था कि करप्शन किया, करप्शन के पैसे वापस लाऊंगा, इनको करप्शन में पकड़ूंगा। उसको बाजवा चला रहा था, या इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। बाकी जितनी मशीनरी है सारी, ये सारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार की भर्ती की हुई है। बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। जिसके दौर के भर्ती किए होते हैं वो उनका एहसास करते हैं, और फिर इन लोगों को पता है, तजर्बा है, इतने कौन कौन करप्ट है, और करप्ट को गर्दन से पकड़ना कितना आसान होता है,
उनको ओहदे पे लगा देते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं जो दिल चाहता है। अगर वो उसको भी पता होता है मैंने करना, अगर नहीं करूँगा तो मेरी करप्शन, मेरे केस जो हैं वो सामने आ जाएंगे, उनको उजागर कर देंगे, अवाम के सामने ले आएंगे, जो अभी ये केस बना देंगे। तो उसकी मजबूरी होती है, उसने उस करप्ट बंदे ने इनकी गलत बातें सारी माननी होती हैं। तो मेरे भाइयों, बस मैं सोचने के लिए एक बोलता हूँ कि आप ज़रा सोचा करें, गौर किया करें, अंधे होकर ना चलें। ज़मीर है, कोई ईमान है, अल्लाह है सामने रख के आप उसको हाज़िर और नाज़िर जान के आप ज़रा सोचा करें। इमरान खान का 3.5 साल का दौर और इन बदमाशों का 30-35 साल दौर, और अभी तक ये बैठे हुए हैं सिंध वाले जो हैं, उन लोगों की हालत ज़रा गौर करें। उन लोगों के अस्पतालों का ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जो रिपोर्टें आती हैं, जो थर वाले लोग हैं प्यासे मर रहे हैं, उनका हाल देखें, और सारे सिंध का हाल देखें, ये कब से इक़्तिदार में है। तो मेरे भाइयों, बस ये है। अब देखें अवाम निकलती नहीं निकलती, क्या करेगी वहाँ, भूखी नंगी अवाम क्या करे। लेकिन करना अवाम नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। जहाँ भी इनकलाब आए हैं, आप श्रीलंका का देख लें, और अवाम ही निकली है, अवाम निकली है, तो फिर ही कुछ बनता है या होता है। तो निकलना पड़ेगा आपको, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हकूक़ के लिए निकलना पड़ेगा। कुछ हमें ठंडी हवा का झोंका दिल्ली से भी आ रहा है कि ये लोग हैं, बाकी दुनिया भी देख रही है कि ये तो चोर आ गए हैं सारे, इनको हम कर्जा क्यों दें। पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन हम ऐसे लोगों को दे दें, ये तो खा जाएंगे। और खा गए हैं, पहले सारे खा ही गए हैं ना, इसीलिए हम उनका सूद देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। जो उन्होंने कर्जे लिए वो तो खा गए हीलो बहानों से, इधर उधर करके नमैशी किस्म के लगा के प्रोजेक्ट, ये का कोल वाला लगाया साहिवाल में, या उधर सोलर का लगाया है। देखें आप, ज़रा अंदाज़ा तो लगाएं कि कितनी लागत आई है, उससे कितनी हमें बिजली मिल रही है। कुछ भी नहीं, ये इस तरह के नमाइशी किस्म के काम करते हैं। पुल बना दिया, सड़क बना दी, तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को इन्होंने। अब इतना पीछे कर दिया। अब ठीक है, अब इमरान खान, ये हम नहीं तो करते कि इमरान खान आते ही बटन दबाएगा तो और आन हो जाएगी, तरक्की आन हो जाएगी, और बस एक आधे साल में हम सीधे हो जाएंगे और ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों, अभी से ज़हन बना लें, अभी से ज़हन बना लें, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ आएगा, इंशाअल्लाह आएगा, और सीधे रुख की तरफ हम चलना शुरू हो जाएंगे, फिर देखें आगे कितना वक्त लगता है, वक्त लगेगा। अब देखें, ये 76 साल का गंद है, फिर इकट्ठा हो गया, फिर उससे भी ज़्यादा गंद पड़ गया। तो इसको साफ़ करने के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त आए लगेगा। तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, वो खैर खैरियत से आए, और इंशाअल्लाह आएगा और सही रुख पे चलेगा। वो पागल नहीं है अब इनसे डील करे, तो हमसे को डील करके कुछ वो अपनी रैयत का चाले क्यों करे। उसने इतनी सख्तियाँ, इतनी मुसीबतें डालनी, अब क्या रह गया, उसको कत्ल ही करना है, कर दें। ये कत्ल इनके गले पड़ जाएगा इतना ज़्यादा कि इनका जीना महाल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। इसलिए नहीं मार रहे, वरना जो मार देते उसको, ये मार नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, इंशाअल्लाह ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वो उसको, ये इनकी मजबूरी बन गई है। अब इनके पास भागने का रास्ता नहीं। अब मिन्नतें कर रहे हैं कि तुम 9 मई की माफ़ी मांग लो। पागल है वो, हैं वो पठान है, पागल है कि तुम्हारी 9 मई की जब काम किया नहीं। कितनी सीधी बात करता है वो कहता है मैंने जब किया नहीं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, जो किया हो उसकी तो माफ़ी होती है। तो मैं फिर एक अजीब बात है जी, उसने जी क्या कह दिया, न्यूट्रल हो जाओ, और ये बंदा मुकर्रर कर दिया, लो जी वो घुटने टेक दिए हैं। ये घुटने चालें होती हैं, ये सारी चालें चल रहा है। लो जी बयानिया ख़त्म कर दिया उसने अपना, कत्तर वाली बात करता था, मुजीबुर रहमान की बात करता था, फलां की बात करता, वो सारा बयानिया ख़त्म हो, क्यों ख़त्म हो गया। ये पैसे लेने वाले लोग कुत्ते भौंकते हैं, ये पैसे लेते हैं, लिफाफे लेते हैं, ये नून लीग के कुत्ते हैं जो चैनलों पर बिके हुए चैनलों पर बैठकर बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इन पर भी इंशाअल्लाह वबाल और अज़ाब आएगा, जब भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।